Good morning, students. Yesterday, I derived that in inductor EMF leads current by 90 degree, and in capacitor current leads EMF by 90 degree, or EMF lags behind current by 90 degree. The resistance offered by inductor to the flow of AC is given by omega L, where omega is 2 pi nu L, and the resistance offered by a capacitor to the flow of AC is given by 1 upon omega C, and it can be rewritten 2 pi nu C. Now, a numerical based on XL and XC. A pure inductor of inductance 25 millihenry is connected to AC source of 220 volt and 50 hertz frequency. Find inductive reactance means XL calculate करना है हमें. So given is EV is equal to 220 volt. Frequency of AC is given 50 hertz. L is given 25 millihenry, which means 25 into 10 power minus 3 Henry. Now, inductive reactance is given by XL is equal to 2 pi nu L. So, substitute value XL is omega L, omega is 2 pi nu. So, on substituting values, we get inductive reactance is equal to 7.85. Now, what is the current flowing through this inductor? This is inductor. Its की inductance की value दी हुई है. So, it is offering resistance equal to 7.85 ohm. Now, current flowing through it will vary, but its virtual value is given. It is 220 volt. I told you earlier that if it is not mentioned कि virtual value है या नहीं, then it is understood कि he is talking about virtual value. AC of 220 volt means it is virtual value. So if it is virtual value, so current which is virtual current is given by E virtual upon resistance which is offered by inductor. So substitute value, it gives 28.3 ampere. Now second question. A capacitor of capacitance 1.5 microfarad is connected to 220 volt and 50 hertz AC. Again, it is understood this value is virtual value. Find XC and peak value of current. Now this is your capacitor. Its capacitance is given. So let us find first of all what is the resistance या जिसको हम क्या कहते हैं reactance offered by capacitor. It is given by this. So substitute value nu is given, C is given. So on substituting value it is 212 ohm. So current it is EB upon XC, it is 1.04. Now peak value और virtual value के बीच में relation if you remember ये था. So now if you want to calculate peak value, then peak value will be root 2 into IB. So IB हमने निकाल रखा है. This is 1.41. root 2 की value, इसकी value 1.47. So it will give, this is 1.04 IB. So it is 1.47 ampere. Now other part of question is कि if frequency is doubled, what happens to XC and IB? See, XC is given by this. XC is 1 upon omega C, or you can write it as 2 pi nu C. So if frequency of AC is doubled, then
reactance will reduce to half. If reactance reduces to half, then current will be doubled. See, अगर ये XC न्यू बढ़ गया तो XC घट जाएगा. इफ न्यू इज डबल्ड इट इज हाफ. अगर ये हाफ हो गया, कम हो गई, तो IV विल बी डबल्ड. Now next very important question which is generally asked in 5 marks, series LCR circuit. So consider series combination of inductor L, capacitor C and resistor R. So these three are joined in series and this is source of alternating EMF. Since these are in series, so same current will flow through L, C and R. चलिए, इसने जो करंट भेजा उसकी जो एवरेज वैल्यू वर्चुअल वैल्यू है, लेट इट बी IV एंड पीक वैल्यू इज IV. सो IV विल बी द पीक करंट. सो ये इस तरह फ्लो कर रहा है, तो मैंने जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मैंने ऐसे दिखाया अलोंग एक्स एक्सिस. सो दिस इज करंट फ्लोइंग थ्रू L. यही करंट C से फ्लो करेगा और यही करंट फिर R से फ्लो करेगा. सो सब में करंट जो है, चाहे L है, चाहे C है, चाहे R है, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट अलोंग एक्स एक्सिस. सो ये है करंट फ्लोइंग थ्रू L और यही है करंट फ्लोइंग थ्रू C और यही है करंट फ्लोइंग थ्रू R. नाउ इफ दिस इज द करंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस, तो वी नो इन इंडक्टर EMF लीड्स करंट. तो ये है करंट फ्लोइंग थ्रू L. तो ये है EMF या वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस L. तो ये इट इज़ लीडिंग बाय 90 डिग्री. फिर ये है करंट फ्लोइंग थ्रू C, वही करंट जो इससे फ्लो कर रहा था, तो अलोंग हॉरिजॉन्टल. एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C. तो ये it is leading, current is leading EC by 90 degree. We know in capacitor current leads EMF by 90 degree. In resistor both are in phase. तो ये मैं करंट जो इससे फ्लो कर रहा है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस दिखा रहा हूँ. तो जो ER है पोटेंशियल डिफरेंस वो भी इसी तरफ, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0. One thing more, I have assumed here that EL is greater than EC. So now let me draw phase diagram. This is I naught. करंट फ्लोइंग थ्रू L भी है, करंट फ्लोइंग थ्रू C भी है और R भी है. एंड इन रजिस्टर ER एंड I नॉट आर इन फेज. तो ये छोटे वाला एरो जो ये है इट इज़ I नॉट और लंबे वाला एरो ये OC इट इज़ रिप्रेजेंटिंग ER. बोथ आर इन फेज. तो नाउ दिस इज करंट फ्लोइंग थ्रू L ऑल्सो. तो ये है EL, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L, और ये 90 डिग्री से इसको लीड कर रहा है I, जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है. नाउ देन इट इज़ ऑल्सो करंट फ्लोइंग थ्रू C. तो ये है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और ये 90 डिग्री से लैग कर रही है. ये है नाउ करंट थ्रू C और ये है वोल्टेज अक्रॉस C. सो वोल्टेज अक्रॉस C इज लैगिंग करंट बाय 90 डिग्री. सो आई हैव 3 voltages, EL, EC and ER. EL and EC are opposite to each other. सो मैं इन दोनों के बजाय एक सिंगल वेक्टर लगा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ. इफ़ देयर आर 2 फोर्सेस, एक इधर लग रही है सपोज 100 न्यूटन, तो एक इधर लग रही है दिस इज सपोज 80 न्यूटन. सो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग these 2 forces you can apply only one force which is equal to 20 न्यूटन. सो बॉडी विल मूव टूवर्ड्स ग्रेटर फोर्स. तो रिजल्टेंट ऑफ दिस टू इज 80. तो यहाँ क्या है, ये जो है EL जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L ज़्यादा है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C कम है. तो रिजल्टेंट इज OA टूवर्ड्स बिगर वेक्टर EC. तो से इफ इट इज़ 100 वोल्ट, दिस OD
is suppose 100, OF is say 80, तो रिजल्टेंट OA हो गया टूवर्ड्स EL। सो मैंने इन दोनों को सिंगल वेक्टर से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे भी EL और EC का रिजल्टेंट OA, तब एक वोल्टेज OA हो गई और एक बच गई ER। तो लेट अस सपोज दीज आर टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एक साइड है OC, दूसरी है OA। सो दिस डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल OB विल बी द रिजल्टेंट, एंड OA इज इक्वल टू EL माइनस EC। सो दिस इज द रिजल्टेंट, और इन अदर वर्ड यू कैन से E नॉट के ये EL माइनस EC और ER, these are two parts. You can say 7 plus 5 is 12. तो we can say 7 और 5 का रिजल्टेंट 12, या you can say 7 और 5 जो हैं they are parts of 12. So R is here, this is EL minus EC vector, and this is your it is ER. These are two vectors. This is O, this is A, this is C. So I have represented these two vector by adjacent sides of parallelogram. तो इनका रिजल्टेंट जो है ये डायगोनल देगा, एंड दिस इज योर E नॉट। सो यू कैन से E नॉट, सॉरी, this vector plus this vector is equal to E naught. So according to parallelogram law, this is EL minus EC plus ER vector is equal to E naught vector. So I can say EL minus EC और ER का रिजल्टेंट E है, और you can say EL minus EC and ER, these are parts of E naught. So how to calculate magnitude of E naught? You know, if we have two vectors A and B, तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस मेथड से निकाला जाता है, 2AB cos of angle between A vector and B vector. So now here resultant is E naught. So it is E naught is magnitude of resultant. टू वेक्टर्स जो एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम की, एक ये है और एक ये है। सो यू कैन से इसको ए वेक्टर की जगह ले लीजिए, तो ये आ गया ER² प्लस EL माइनस EC का होल स्क्वायर प्लस 2, ये यू विल गेट दिस इज वैल्यू ऑफ E नॉट। और इन दोनों के बीच में एंगल, ये जो EL माइनस EC वेक्टर और ER है, दिस इज 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 90। सो cos 90 इज 0, सो ये टर्म 0 हो जाएगी, दिस टर्म इज 0। एंड अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू L इज I नॉट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय L इज XL, एंड V की जगह I am writing potential difference across L. Similarly, potential difference across जो C है, it will be EC is equal to I naught is the current and resistance offered by capacitor is XC. So substitute value, ये हमारी ER is equal to I नॉट इंटू आर उसका स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू I नॉट XL, EC की वैल्यू I नॉट XC और इसका सारे का होल स्क्वायर। I नॉट स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे, I नॉट आ जाएगा, और अंदर रह जाएगा R² प्लस XL माइनस XC, एंड टेक I नॉट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो ये आ गया। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ VY इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। So this is peak value of EMF, this is peak value of current, तो इनको डिवाइड करके जो आएगा that will be resistance। और यू में से E नॉट अपॉन I नॉट, दिस इज Z, इन दोनों को डिवाइड करके क्या आना चाहिए, रेजिस्टेंस, एंड आई एम डिनोटिंग दैट रेजिस्टेंस बाय Z। सो Z इज इक्वल टू किसकी जगह लिखा है, इसकी जगह लिखा है।
दिस इज कॉल्ड इन्फिडेंस। इम्पीड करना, रुकावट पैदा करना, इम्पीड, इम्पीड से जैसे रेजिस से रेजिस्टेंस, इम्पीड से इन्फिडेंस। So it is the total resistance which is offered by series combination of L, C and R. ये है ohmic resistance. It is because of collisions of electrons with atoms. इसका कारण जो है इन दोनों का, it is induced EMF. We call this reactance. So ये टर्म जो है ये है net reactance and this is the resistance. As I told you, resistance due to collisions of electrons with atoms and it is due to induced EMF. So this is called impedance. Then this is your triangle. ये this is ER. This is I naught into R in magnitude, and this is your EL minus EC. I can rewrite it I naught XL minus I naught XC and take I naught common. This is XL minus XC. So ये this is your parallelogram, this is resultant, and it is equal to E naught. This is equal to I naught into Z. And ये if OA is equal to OA is EL minus EC या I naught ब्रैकेट में XL minus XC. तो this is also I naught XL minus XC. This is I naught XL minus XC. This is I naught R. This is E naught is equal to I naught into Z. So तीनों sides of triangle में I naught common है. So if you say this is your, you can say this is 5 centimeter. Yeah, it is 3 into 2. This is 3 into 6, let us suppose. This is 3 into 9. So 3 is common. तो you can say कि इस triangle की जो side है you take 2 और इस side को ले लो आप 6 और इस side को ले लो 9. So ये triangle which is obtained by taking I naught common is called impedance triangle. This is then R. This is your XL minus XC. I naught छोड़ दिया and this is your Z. Excuse me. This triangle is called impedance triangle. One thing more. Here potential difference across L is more than potential difference across C. ये EMF को लीड कराता है अगर अकेला हो बाय 90 डिग्री से. ये अकेला हो तो ये करंट को लीड कराता है बाय 90 डिग्री से और EMF को ये पीछे रखता है. वी कैन सी ये 90 डिग्री से EMF को आगे रखता है, ये 90 डिग्री से EMF को पीछे रखता है. बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L हमने ज़्यादा मान रखा है, से इसके अक्रॉस 100 वोल्ट है, ये इसके एंड्स के अक्रॉस, और इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से 80 वोल्ट है. सो किसकी चलेगी? इसकी चलेगी, क्योंकि नेट रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा. सो बट ये अगर इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता, इसके अक्रॉस 100 इसके अक्रॉस भी 100, तो दोनों का इफेक्ट काउंटर बैलेंस हो जाता है. ये 90 डिग्री से EMF को लीड कराना चाहता है और ये 90 डिग्री से करंट को लीड कराना चाहता है. वी कैन से EMF को आगे रखना चाहता है 90 डिग्री से, ये EMF को 90 डिग्री से पीछे रखना चाहता है. सो अगर ये दोनों बराबर होते तो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाता. अगर ये 100 ऊपर की तरफ वोल्टेज और नीचे की तरफ भी 100, तो इनका इफेक्ट आपस में कैंसल. सो कोई फेज डिफरेंस नहीं होता EMF और करंट के बीच में. बट इट इज़ मोर, EL इज़ मोर देन EC. देयरफॉर वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स कि किसकी चलेगी? L की चलेगी. इनर्शियल EMF विल लीड बट नॉट बाय 90 डिग्री.
लीड जरूर करेगी लेकिन 90 डिग्री से नहीं करेगी. सो इट इज़ लीडिंग बाय फेज एंगल फाई. ये है करंट. दिस इज योर करंट विच आई हैव शोन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, and this is the resultant EMF. So resultant EMF E naught is leading current but not by 90 degree, it is leading by phi angle. So if you apply Pythagoras theorem, then Z is equal to R square plus XL minus XC whole square. वन थिंग मोर कि ये कैसे आ गया हमारा E naught is equal to I naught into Z. It is very clear from here. E naught is I naught into Z. So this is impedance. Now comes what is the phase difference phi. How to calculate कि 20 डिग्री से लीड करेगी EMF या 30 से या 25 से, वो निकाला जाता है. It is sure कि EMF will lead because it is inductance dominated circuit, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है. फ्रॉम दिस ट्रायंगल ये ओ सी बी, ओ सी इज ई आर, बी सी इज इक्वल टू ई एल माइनस ई सी. तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ सी बी, इट इज a right angle triangle. Tan of, from here what is tan of phi? Tan phi is, it is बी सी अपॉन ओ सी. बी सी है हमारा ई एल माइनस ई सी एंड इट इज ई आर. नाउ देन put values of EL. EL is I naught into XL. It is I naught into XC. ER is I naught into R. Take I naught common, so you will get I naught common लिया तो ये आ गया tan phi is equal to XL minus XC upon R. XL we know omega L होता है. XC is equal to this, so this is expression for phase difference between current and EMF. From here we can calculate. Now see, if XL बड़ा है, XL सपोज 120 है, XC मान लिया 100 है, ये से 10 है, तो 120 माइनस 100, it will be positive 20 divided by 10. So it is positive. If XL is greater than XC, tan phi positive आएगा और means phi positive, and we will say that this circuit is inductance dominated. और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा बिकॉज सी हेयर ई एल इज़ आई नॉट इंटू एक्सएल. एक्सएल बड़ा है एक्सी से, तो डेफिनेटली ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा इफ़ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी. सर्किट इज इंडक्टेंस डोमिनेटेड. इन अदर वर्ड्स what will happen, phi positive means करंट, ये EMF E नॉट विल लीड करंट, ये करंट को EMF लीड करेगी. Now if XL is less than, तो ये XL less than, you can say this is your 120, this is 100 minus, so it will be negative. 100 minus 120 negative, so tan phi is negative and circuit is capacitance dominated. If they are equal XL and XC, then this phi will be 0. XL or XC equal, phi 0. So this is about series LCR circuit. It is very important. Now then comes what is resonance. We know in series LCR circuit, this is the relation E naught upon I naught is equal to Z, where Z is equal to R square plus XL minus XC का whole square. So we can see इन तीनों ने मिलकर जो रेजिस्टेंस ऑफर करी, that is given by this. ये है रेजिस्टेंस ऑफर, ये ओमिक रेजिस्टेंस है. रजिस्टर ने जो ऑफर करी, ये दोनों ने कैपेसिटर और इंडक्टर ने जो ऑफर करी. नो if XL is equal to XC, you can take, this is your say 5 का square, this is your say 7, this is 5, XL is 5, XC is 7, so ये आएगा हमारा 25 प्लस 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, इट इज़ 29 रूट 29. अगर ये सपोज इसका डिफरेंस ज़्यादा है, दिस इज़ 8, दिस इज़ से 3
एक्सएल इज 8, एक्स इज 3 अंडर रूट, तो 25 में जमा होगा 25 और अभी बढ़ाएगा, दिस इज 50, जेड ज़्यादा आएगा। सो वी कैन से जैसे इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा आएगा तो उसका स्क्वायर इस 5 के स्क्वायर में जमा हो जाएगा। बट इफ दे आर इक्वल, इफ बोथ आर इक्वल टू से 5 या बोथ आर इक्वल टू 8, एक्सएल और एक्सी, तो ये 0 आ जाएगा और इसके 5 के स्क्वायर में कुछ भी जमा नहीं होगा एंड दिस इज मिनिमम वैल्यू। सो वी कैन से जेड विल बी मिनिमम जब ये दोनों आपस में पूरी तरह से कट जाएं। वी से जेड मिनिमम इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। सो इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, जेड इज मिनिमम। And if resistance offered by a series combination of L, C and R is minimum, तो इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, बिकॉज करंट फ्रॉम हेयर, लुक, करंट फ्रॉम दिस रिलेशन विल बी इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड। दिस इज वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन सीरीज एलसीआर सर्किट। जब जेड मिनिमम होगा तो करंट जो सर्किट में फ्लो होगा वो मैक्सिमम होगा, and Z will be minimum when XL is equal to XC. If XL is equal to XC, तो टोटल जो रेजिस्टेंस है that will be equal to R स्क्वायर रूट, ये आपस में कट गए, XL और XC, R स्क्वायर रूट रह गया, उसका रूट लेंगे तो R आ जाएगा। सो Z मिनिमम, I नॉट इज मैक्सिमम। So we will say कि resonance is taking place. So what is resonance? Series LCR circuit is said to be in resonance if it admits maximum current. कि अगर सीरीज LCR सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है वो अगर मैक्सिमम है तब हम कहेंगे कि सीरीज LCR सर्किट इज इन रेजोनेंस। और ये कब पॉसिबल है? व्हेन XL इज इक्वल टू XC। इसकी रिएक्टेंस और कैपेसिटर की रिएक्टेंस ये दोनों बराबर होनी चाहिए, और उस कंडीशन में क्या होगा कि ये EMF को लीड करवाना चाहेगा और ये उतना ही जोर लगाएगा EMF को लैग कराने में, तो दोनों का इफेक्ट काउंटर बैलेंस हो जाएगा। सो देयर नेट रिएक्टेंस विल बिकम 0 और सर्किट में सिर्फ ये अकेला ही रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो ये लगे ज़रूर हैं, लेकिन एक लीड करवाएगा EMF को और दूसरा उतना ही जोर लगा के लैग कराएगा EMF को, और दोनों का इफेक्ट काउंटर बैलेंस, और यही रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस, सीरीज LCR सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होगी? इक्वल टू R। तो इन्फिडेंस ऑफ दिस circuit will be equal to capital R. So then what will be the current? See, I naught is given by E naught by Z. So you can rewrite E naught under root R square plus XC minus XL. तो डिनोमिनेटर मिनिमम होगा जब XL और XC बराबर होंगे, दिस इज XL, दिस इज XC. So then if XL is equal to XC, then डिनोमिनेटर में सिर्फ R ही रहेगा. So this is I naught, or you can say this is the maximum value of current flowing in series LCR circuit. Then वो frequency AC की, it will happen only for one particular value of frequency. वो frequency की value, जिस frequency की value पे these two are equal, ये XL is equal to XC, सपोज वो frequency की value ओमेगा नॉट है और ये 1 upon ओमेगा नॉट C. So it is the value XC is 1 upon omega naught C.
दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच XL और XC बराबर हो जाते हैं, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड लेट मी डिनोट इट बाय ओमेगा नॉट. सो फ्रॉम हेयर ओमेगा नॉट स्क्वायर इसको इधर ले आइए और L को इधर नीचे. सो इट गिव्स यू ओमेगा नॉट 1/LC. और यू में कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, this is 1/LC root, and from here frequency is 1/2 pi under root LC. now अब बात करते हैं कि ये क्या है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. चलिए मेरे पास एक सीरीज LCR सर्किट है. आई हैव अ सीरीज LCR सर्किट. दिस इज योर L and this is C and this is R. This is source of. चलिए इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स. तो ये जो L है इसकी वैल्यू है हमारे पास 20/पाई हेनरी. C की वैल्यू है 5/पाई into 10⁻⁻6 farad, or you can say 5 microfarad, and value of resistor is 25 ohm. Suppose this is a source of variable frequency और इसकी वोल्टेज 220 वोल्ट, द वर्चुअल वैल्यू. दिस इज द फ्रीक्वेंसी. नाउ इसने जो रेजिस्टेंस ऑफर करी XL, इट इज 2 पाई न्यू इंटू L. दिस इज 2 पाई इंटू 50 न्यू की वैल्यू. L की वैल्यू 20/पाई, पाई से पाई कट गया, इट इज 2000 ओम. XC is 1/2 pi nu into C. This is 1/2 pi nu 50 and C is 5/pi 10⁻⁻6. This is also 2000. So if I take value of frequency 50, तब XL भी 2000, XC भी 2000. बट इफ़ यू चेंज दिस वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर इसको 50 के बजाय 51 कर देंगे तो ये तो बढ़ जाएगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी 50 से 51 होगी, ये बढ़ जाएगा. एंड XC फ्रीक्वेंसी बढ़ने से ये घट जाएगा, ये 2000 से कम हो जाएगा. से ये 2000 से 2003 हो गया और ये हमारा से 1990 ओम. लेट मी सपोज कब, इफ़ इसकी जगह 51 कर दिया और इसकी जगह पे 51 कर दिया. सो नाउ दे आर नॉट इक्वल. ओनली फॉर 50 हर्ट्स frequency of AC, XL will be equal to XC. So this particular frequency of 50 hertz at which XL and XC are equal is called resonant frequency, because these are fixed. L इस सर्किट में फिक्स है, C फिक्स है, इसको आप चेंज करते हो. अगर ये 51 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो इन दोनों की रेजिस्टेंस आपस में कैंसिल नहीं होगी. तो R स्क्वायर में जो इनका डिफरेंस होगा XL और XC का, ये डिफरेंस है XL माइनस XC का, 8 इज 13. तो इसकी जो रेजिस्टेंस है, दिस टोटल इन्फिडेंस है, इट विल बी Z इज इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर. सो दिस इज योर से 25 का स्क्वायर, और ये इन दोनों का डिफरेंस, इट इज़ XL, दिस इज XC, इट इज़ 13 इनका डिफरेंस, इसका स्क्वायर. सो दिस इज द रेजिस्टेंस. बट इफ फ्रीक्वेंसी इज 50 तो इन दोनों की आपस में वैल्यू XL और XC की बराबर. सो ये बराबर, सो रेजिस्टेंस विल बी ओनली 25 प्लस 2000 माइनस 2000 का स्क्वायर, this is 25. So at resonance the frequency of series LCR circuit will be equal to resistor. So we can say this circuit will be purely resistive at resonance. जो इंडक्टिव रिएक्टेंसेज है जो EMF के कारण होती है वो नहीं होगी, और सर्किट में यही रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. सो नाउ इफ यू प्लॉट ग्राफ ऑफ
No, sorry, before that I have, this is your, yes, now characteristics of uh, resonance. At resonance, XL is equal to XC, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. tan phi we know XL माइनस XC, ये इक्वल होते हैं रेजोनेंस पे, तो ये जीरो हो जाएगा, tan phi जीरो, so phi is zero. Z is given by this. At resonance, XL and XC are equal, so Z will become equal to R. Voltage or potential difference across R will be equal to applied voltage. This is very important. See, यहाँ से हमने अभी किया था E नॉट अपॉन आई नॉट, दिस इज इक्वल टू जेड. ये हमने यहाँ सबसे पहले वाले में किया. दिस इज E नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू जेड सीरीज LCR सर्किट. फ्रॉम हेयर E नॉट जो अप्लाइड वोल्टेज है, दिस इज अप्लाइड वोल्टेज सोर्स की, दिस इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड. At resonance, Z is equal to R at resonance, so E. So applied voltage is equal to potential difference across resistor. Then when number of frequencies are fed to series LCR circuit, it accept only one frequency. Very interesting. अगर हम जस्ट अ मिनट, इसमें इस सोर्स में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं. 50 हर्ट्ज़ का AC भी है इसमें, 51 हर्ट्ज़ का भी है, 49 हर्ट्ज़ का भी है. मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंट. तो फॉर 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी इसकी और इसकी रिएक्टेंसेस बराबर घट गई, तो 50 हर्ट्ज़ पे इस सर्किट की रेजिस्टेंस मिनिमम होगी, सिर्फ यही रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और इसमें सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा. और 49 या 51 जब फ्रीक्वेंसी होगी तो इन दोनों की रिएक्टेंस आपस में नहीं कटेगी, तो आर स्क्वायर में ये डिफरेंस ऐड हो जाएगा और ये इन्फिडेंस जो है 25 से ज़्यादा होगी और करंट कम हो जाएगा. सो वी कैन से ओनली एट 50 हर्ट्ज़ करंट विल बी मैक्सिमम. अगर 50 से 51 हो जाएगी तो ये XL बढ़ जाएगा, XC घट जाएगा. और अगर ये 49 हो जाएगी तो ये घट जाएगा, 50 पे 2000 था, तो ये 50 से 49 हो जाएगी तो XL घट जाएगा, और ये 50 से 49 होगी, ये बढ़ जाएगा. सो फिर वो डिफरेंस जो है, अभी क्या होगा, ये बढ़ गया सपोज, नाउ इट हैज़ बिकम सॉरी इट विल डिक्रीज बिकॉज फ्रीक्वेंसी 50 से 49 होगी. सो दिस इज 1900 सपोज, या 1990 ले लो, और ये सपोज 2000, ये 50 से कम हो गया न्यू, तो ये बढ़ जाएगा, से इट इज़ 2010. सो ये जो डिफरेंस है ये नेगेटिव आएगा. XL माइनस XC, ये बड़ा है XC, बट इसका स्क्वायर नेगेटिव का फिर पॉजिटिव हो जाएगा और R स्क्वायर में जमा हो जाएगा. सो फिर Z बढ़ जाएगा. सो इफ़ यू प्लॉट ग्राफ, तो ऐसे ग्राफ आएंगे. अगर मेरे सर्किट में R जो है सपोज ये 25 है, व्हाट यू डू, 50 हर्ट्ज़ पे करंट मापो, फिर इसको 50 से ज़्यादा कर दो, फिर करंट मापो, घट जाएगा. इसको 52 कर दो, करंट और घट जाएगा. क्यों? बिकॉज जैसे ये बढ़ती जाएगी फ्रीक्वेंसी, ये डिफरेंस दोनों में बढ़ता जाएगा और इन्फिडेंस बढ़ती जाएगी. और अगर 49 कर दोगे, 48 कर दोगे इस फ्रीक्वेंसी को, 47, तो भी ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा और करंट फिर कम हो जाएगा. सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट. दिस इज करंट एंड ये है वो 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी जिसको मैंने ओमेगा नॉट कहा है. इस पे करंट मैक्सिमम है. अगर ये फ्रीक्वेंसी 50 से 51 हो गई तो ये करंट कम हो गया. ये 52 हो गई फ्रीक्वेंसी तो करंट और कम हो गया. ये अगर 49 होगी, ये 50 है तो इधर 49 होगी, करंट फिर कम हो गया. फिर ये और कम होगी से 45, तो करंट और कम हो गया. सो वी कैन से करंट इज मैक्सिमम एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 50. अब दिस इज फॉर अ सर्किट इन विच वैल्यू ऑफ R इज 25. नॉट टेक अनदर सर्किट, इसी में इनको नहीं चेंज करिए आप, इसकी वैल्यू जो है 25 से 15 कर दो, कम कर दो.
जब कम कर देंगे इसकी वैल्यू तो करंट विल इंक्रीज फ्रॉम हियर सी आई नॉट इज ई नॉट बाई जेड, जेड इज इक्वल टू आर एट रेजोनेंस। तो आर घट जाएगा तो मैक्सिमम करंट भी बढ़ जाएगा। सो ये ग्राफ जो है इट इज़ फॉर सेम वैल्यू ऑफ एल एंड सी, बट आर को हमने इससे 15 कर दिया, 25 से आर कम कर दिया। तो आर कम करेंगे तो बस ग्राफ की शेप लगभग वही है, लेकिन पीक वैल्यू ऑफ करंट अब ज़्यादा है। इसका पीक करंट ये था, अब पीक करंट बढ़ गया। और कम कर देंगे तो ये आ गया ग्राफ, दिस इज ग्राफ। देर इज़ वन मोर डिफरेंस। अच्छा, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये कम है और कम है। देर इज़ वन मोर डिफरेंस, ये जो है इट इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट, लगभग ग्राउंड स्मूथ, लेकिन इसमें देर इज़ नो वेल डिफाइंड शार्प पीक, बट हेयर आई हैव शार्प पीक। ये के वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें अगर मेरा ये ग्राफ ऐसे है, ऐसे, ये मुझे बता रहा है कि इफ़ दिस इज़ 50, ओमेगा नॉट इज से 50, न्यू नॉट इज 50 सपोज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो करंट मैक्सिमम है। अगर हमारा ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सी ये दिस इज 51, 51 है, 51 कर दी फ्रीक्वेंसी, तो ये करंट पहले बहुत ज़्यादा था, 10 एम्पेयर था, और अब कितना रहेगा 2 एम्पेयर। There is very large decrease in value of current when there is slight change in frequency। 51 पे करंट बहुत कम, and at frequency 50 it is maximum। On the other hand, if graph is like this, this is 50, 50 पे करंट सपोज इट इज़ 5 एम्पेयर, 51 पे या 51 ही लेते हैं, करंट की वैल्यू में नेग्लिजिबल डिक्रीज हुई, इट इज़ 4.8 एम्पेयर। सो वी कैन से इस सर्किट में और इसमें एक फ़र्क है। अगर ऐसा ग्राफ है किसी सर्किट का तो वी कैन से अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी एसी की तो करंट बहुत ही ज़्यादा होगा, और 50 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी या थोड़ी सी कम होगी तो करंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ ग्राफ ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट इज लाइक दिस, तो ये हमें बता रहा है कि 50 पे जितना करंट है लगभग उतना ही 51 पे है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सो हियर रेजोनेंस इज शार्प, बट ऑन द अदर हैंड इन दिस रेजोनेंस इज नॉट शार्प। इसमें करंट लगभग उतना ही रहेगा, एसी की फ्रीक्वेंसी अगर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी हो जाए। सो दिस शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस वी कॉल इट इज represented by Q factor। So what is Q factor? Q factor is the ratio of potential difference across L or C at resonance divided by potential difference across R at resonance। At resonance we know current maximum होता है, so potential difference across L ये होगा EL, but at resonance current is maximum, so I have written it I not maximum। So potential difference across register, ये जितनी भी अप्लाइड EMF होती है उतना ही potential difference होता है रेजोनेंस पे across L R, ये दे विल कैंसिल आउट। सो ये आ गया ओमेगा नॉट यूनिट इज 1/√LC, या इट कैन बी रिटन Q factor is equal to 1/√L/C। if you want to take potential difference across C, ये potential difference across L और C at resonance, C के क्रॉस लेना, यहाँ पे तो इट विल बी I नॉट मैक्सिमम इंटू XC और फिर से यही रिजल्ट आएगा। नाउ सिंपल न्यूमेरिकल, वी हैव सीरीज LCR सर्किट इन विच XL दिया हुआ है, XC दिया हुआ है, R दिया हुआ है, Z निकालिए। वेरी सिंपल, Z इज इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC, substitute values it is 50 ohm। Now second, yeah, I have solved it right now, just a moment before
R is equal to 50, L given, C given, R 50, virtual value 230, and frequency of S is 50 hertz. XL omega L होता है, omega is 2 pi into nu, 2 pi, and this is 50 frequency. Calculate 2000. XC, it is again 2000. So Z will be equal to value of resistance, which is equal to 40. So I am sorry, it should be 40. So total resistance will be equal to resistance in series LCR circuit. Now another and last numerical, we have a series LCR circuit जिसमें C 25 micro farad, L is given 0.1, R is 25, and this is the source of EMF जिसको कि हम इससे represent करें. So if you compare it, this is instantaneous value and this is peak value and this is sin omega t. So सबसे पहला, what is frequency? So if you compare, omega is 314. So omega 314, omega is equal to 2 pi nu is equal to 314. It gives nu is equal to 50 hertz. Then what is the reactance? Reactance means L और C की जो resistance है उसका difference. So XL is equal to omega into L. Omega सीधा ही 314 लीजिए, 314 ये L की वैल्यू. So this is XL. XC is 1 upon omega C, omega 314. This is C, 25 microfarad means 25 into 10 power minus 6. It is 127.3. So take difference of these two values. This will give you reactance. इसमें C बड़ा है XC, तो XC minus XL, it is 95.9 ohm. Z you can calculate. Z is given by this R square plus XC minus XL. अब हमारा XC बड़ा है, अगर आप XL भी पहले लिखते हो तो डिफरेंस विल बी नेगेटिव और उसका स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा. सो ये आ जाएगी 99.1. नाउ वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, यू नो ये पीक वैल्यू होती है. दिस इज पीक वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू निकालनी हो तो वर्चुअल वैल्यू इज पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2. सो दिस इज योर वर्चुअल वैल्यू. अगर वर्चुअल करंट निकालना है तो ये वर्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट. लेकिन मुझे निकालना है पीक करंट, अगर तो ये पीक वैल्यू लेनी पड़ेगी. I0 इज पीक अपॉन जेड, बट आई हैव टू कैलकुलेट वर्चुअल वैल्यू. तो इसकी जो वर्चुअल वैल्यू होगी, पीक वैल्यू है, वर्चुअल वैल्यू 220 होगी और वी कैन से वर्चुअल वैल्यू इज आई एम सॉरी नो ठीक ओके इट्स करेक्ट. EV इज इक्वल टू E0 बाई √2. तो ये आ जाएगा हमारा 310 डिवाइडेड बाय √2. दिस इज 220 वाट. सो EV अपॉन जेड, EV विल बी पीक वैल्यू अपॉन √2, सो 2.22. 10 phi इज XC माइनस XL अपॉन R. ये अभी बताऊंगा मैं क्यों ये XC पहले ले लिया. सो इट इज़ 95.9 this difference XC minus XL divided by R is 25. So yeah, it is value of tangent of 75.4. if you want to convert it into radian तो ये radian में आ गया. then एक बहुत important बात, पहले हमने लिया था कि हमारा EL बड़ा है. now if C is large, this is EC, this is EL. So this is your ER and this is current, छोटे वाला. So कौन बड़ा है जी? EC बड़ा है, तो रिजल्टेंट EC की तरफ होगा. सो वी कैन से अगर ये 80 वोल्ट है और ये 100 वोल्ट है EC, तो रिजल्टेंट विल बी 20 और बड़े वेक्टर की तरफ मीन्स नीचे की तरफ होगा. सो दिस इज ये, दिस इज 20 और यू कैन से दिस इज EC माइनस EL एंड दिस इज योर ER. सो अब ये इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट ही आएगा.
this is resultant, this will be your E naught. This is very important question. So ये तो नो ई सी बड़ा है, ई सी बड़ा है मीन्स कैपेसिटर जो है वो डोमिनेट कर रहा है, और कैपेसिटर किसको पीछे रखवाता है, ईएमएफ को। तो ये ईएमएफ, ये रही रिजल्टेंट ईएमएफ ई सी माइनस ई एल, और ये करंट, तो ये ईएमएफ रिजल्टेंट ईएमएफ ई नॉट, ये आई नॉट से पीछे ही है, तो ईएमएफ इज ई नॉट इज लेगिंग बिहाइंड आई नॉट बाय फेज एंगल फाई, जो कि 90 से कम है। अब कैपेसिटर की चलेगी, यू कैन से, बिकॉज कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, सो करंट विल लीड बट नॉट बाय 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या करेगा, कुछ इफेक्ट जो आपका एल है ये कैंसिल कर देगा। सो करंट ही लीड करेगा बट नॉट बाय 90 डिग्री, बाय सम एंगल विच इज लेस देन 90। सो करंट विल लीड बिकॉज ई सी बड़ा है हमारा, या एक्स सी बड़ा है, एक्स सी इज़ 127, एक्स एल इज़ 31.4, तो ये ई एल इतना है और ई सी होगा आई नॉट एक्स सी। तो एक्स सी बड़ा है, करंट तो तीनों में ही सेम होगा बिकॉज दे आर इन सीरीज एल सी एंड आर, तो एक्स सी बड़ा होने के कारण ई सी बड़ा होगा, तो एक्स सी बड़ा है और एक्स एल छोटा है। सो करंट विल लीड, सो ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर instantaneous value of current. We know current is given by this, I is equal to I naught sin omega t plus phi, because current will lead, EMF का फेज है 314 t या ओमेगा टी, और इसका फेज है ओमेगा टी प्लस पाई 5। सो 5 आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, या तो इसको डिग्री में लिख दीजिए 75.4 डिग्री, या रेडियन में 1.31, और फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही होगी अल्टरनेटिंग करंट की जो हमारी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की है। सो ये पीक वैल्यू होती है, दिस इज़ द वर्चुअल वैल्यू विच आई हैव कैलकुलेटेड हियर। तो पीक वैल्यू करंट की निकालनी हो तो पीक वैल्यू विल बी आई पीक विल बी √2 आई वर्चुअल, सो इट इज़ 2.22 into √2, this is 3.13. Then calculate potential difference across C, L and R, तो V C is I virtual into XC। अगर पीक निकालना है तो इसको आई नॉट ले लीजिए, आई नॉट, तो पीक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। वर्चुअल निकालना है तो इट इज़ ये, दिस इज वैल्यू ऑफ आई वी, ये XC की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली वी एल वी आर, फेज डायग्राम ये ऐसा रहेगा, दिस इज फेज डायग्राम, दिस इज वी एल ऊपर की तरफ, ये वी सी बड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक, डिफरेंस इन दोनों का वी सी माइनस वी एल 212.9, एंड दिस इज वी आर, सो दिस इज रिजल्टेंट ई वी। सो ये है फेज डिफरेंस, करंट आई वी इज लीडिंग ई एम एफ ई वी बाय फाई एंगल विच इज गिवन बाय दिस 75.4 डिग्री। यू कैन ऑल्सो टेक हेयर वर्चुअल पीक वैल्यू, तो ये भी पीक लेनी है, ये भी पीक, ये सारी पीक हो जाएगी। नो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एल जेड इज मिनिमम, सो वी नो जेड इज गिवन बाय दिस, जेड इज मिनिमम इफ एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, और ओमेगा you may write here omega naught if you wish, this is omega naught into omega naught, omega square, from here L is equal to omega naught square by omega naught square C, तो omega is 314, it is 314 omega, so put here 314, C is given, so L is equal to 0.405 हेनरी। सो वी कैन से अगर L की वैल्यू इतनी ली जाए तो क्या होगा, कैपेसिटर की और इंडक्टर की रेजिस्टेंस आपस में कैंसिल हो जाएगी एंड सर्किट विल बी इन रेजोनेंस, जेड विल बी मिनिमम। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस, थैंक यू।